Assalamu alaikum, dear students. We are going to start basic definition in the subject of pharmacokinetics. So let's start that. What is pharmacokinetics? Pharmacokinetics is the study of kinetics. Actually, kinetics means motion. So motion of a drugs in the body, it means that in pharmacokinetic, we study the absorption, distribution, metabolism, and excretion of drugs. In short, we write it ADME for drugs and their corresponding pharmacological, pharmacologic, therapeutic, or toxic responses in men and animals. Simply, if we explain pharmacokinetics, it means that whenever a drug is taken by a patient, the drug moves within the body and we require few things from the drugs, that the drug must be absorbed, distribute, metabolize, and then excrete from the body. So up to what extent absorption, distribution, metabolism of a drug is in the body, it is studied, or you can say it is calculated through pharmacokinetics. So pharmacokinetics is simply the motion of a drugs, its quantification within the body, keeping in mind few important aspects like absorption, distribution, metabolism, and excretion of a drug. Let's discuss few description about the scope of pharmacokinetics. According to American Pharmaceutical Association, applications of pharmacokinetic studies include bioavailability measurements. The first most important thing in pharmacokinetic study is the bioavailability. What is bioavailability? We will discuss it in detail later. Effects of physiological and pathological conditions on drug disposition means ADME. Means what are the effect of physiological condition of the body, and if a body is in a pathological state or if there is a disease, means your major organs of the body are compromised, then you will have to study the ADME of a drug. It will be disturbed because the physiology is not normal, and when the physiology is not normal, all the conditions will change. So first two important things are bioavailability measurements, means the fraction of drug that reach the systemic circulation and can elicit a pharmacological response. सिंपल ये कह सकते हैं हम कि जो फार्मास्यूटिकल ड्रग होती है या जो फार्मेकोकाइनेटिक्स है, उसकी स्टडी में हम क्या क्या, उसका स्कोप क्या चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। तो पहले हम बायोअवेलेबिलिटी मेजरमेंट करते हैं। बायोअवेलेबिलिटी मेजरमेंट्स का मतलब है कि वो ड्रग की वो मिकदार, कोई भी डोजेज फॉर्म आप लेते हैं तो उस ड्रग में से कितनी अमाउंट आपके ब्लड में जा रही है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ रही है, और फिर उसकी वजह से कौन सा कितना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, इस चीज को हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। दूसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजी अब नॉर्मल है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो ड्रग की डिस्पोजिशन मींस उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट डोमेन है डोजेज एडजस्टमेंट ऑफ ड्रग्स इन डिजीज स्टेट्स इफ एंड व्हेन नेसेसरी। अगर कोई पेशेंट है वो रीनली कॉम्प्रोमाइज्ड है, लिवर का मसला है, किडनीज का मसला है, तो फिर जो हम डोज देते हैं उसको, खासकर उन मेडिकेशंस की जिनकी मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन इन रूट से होती है, तो फिर हमें डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है डोज एडजस्टमेंट। उसके बाद है कोरिलेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस विद एडमिनिस्टर्ड डोजेस, कि हम ये चेक करते हैं कि जब हम डोज बढ़ाते हैं तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स पर क्या इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। फार्माकोकाइनेटिक का एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें हम ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं। अगला स्टेप है क्लिनिकल प्रिडिक्शन यूजिंग फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स टू इंडिविजुअलाइज द ड्रग डोजिंग रेजिमेन एंड दस प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग थेरेपी। क्लिनिकल प्रिडिक्शन मतलब फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को हम यूज करते हैं किसी एक खास पेशेंट के लिए, उसकी स्टेट के अकॉर्डिंग उसको जो हम डोज दे रहे हैं वो इतनी सफिशिएंट हो कि उसका मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट आए और वो टॉक्सिसिटी में ना जाए। मतलब हम इंडिविजुअलाइज कर देते हैं किसी पेशेंट के लिए थेरेपी को। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शंस है जो कि आती है उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में। मैं रिपीट कर देता हूँ। द फर्स्ट वन इज bioavailability measurement. The second one is effect of physiological and pathological condition on drug disposition. Third, dosage adjustment of drugs in disease state.
Next, correlation of pharmacological responses with administered doses, evaluation of drug interaction and individualization of drug therapy for a specific patient according to his specific conditions. Let's proceed further. Next important thing is biopharmaceutics. What is biopharmaceutics? Biopharmaceutics and pharmacokinetics are a bit different from one another. Biopharmaceutics is the study of the factors influencing the bioavailability of a drug in men and animals, and the use of this information to optimize pharmacological and therapeutic activity of drug products. Simply हम biopharmaceutics में क्या करते हैं, हम वो फैक्टर्स देखते हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हो, और फिर उन तमाम फैक्टर्स को हम ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि जो डोज हम दे रहे हैं या ड्रग जो हम दे रहे हैं उससे हम मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट हासिल कर सके। तो बायोफार्मास्यूटिक्स सिंपली क्या हो गई, उन फैक्टर्स की स्टडी करना जो इफेक्ट करती है किसके ऊपर, बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर, और इन टर्न बायो अवेलेबिलिटी की वजह से फिर आपको मिलता है फार्माकोलॉजिकल या थेराप्यूटिक रिस्पांस किसी ड्रग का। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने 1972 में कुछ फैक्टर्स बताए हैं जिनको हम जो इफेक्ट करते हैं बायोअवेलेबिलिटी को, और जिसको हमने कंसिडर करना होता है जब हम बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला फैक्टर है केमिकल नेचर ऑफ ड्रग। ड्रग्स जितनी भी हैं हमारे पास, या तो वो वीक एसिड्स होती है या फिर वीक बेस होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नंबर 2, इनर्ट एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, के जो एक्सीपिएंट्स हम यूज करते हैं किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए, उसमें वो एक्सीपिएंट्स जैसे कि डाइल्यूएंट्स होते हैं, बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, ये जितनी भी आप एडजेवेंट्स ऐड करते हैं या एक्सीपिएंट्स ऐड करते हैं, इनका इनर्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट, जो डोजेज फॉर्म आप बना रहे हैं, जैसे कि टैबलेट हम बनाते हैं, तो उसका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आपने ड्राई ग्रेनुलेशन से बनाया है, वेट ग्रेनुलेशन से बनाया है, क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी बायोएबिलिटी को। उसके बाद फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग की है, जैसे कि पीके, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, पार्टिकल साइज है सॉरी, एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टीशन कोफिशिएंट है, और पॉलीमॉर्फिज्म है। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रग्स की जो के इफेक्ट करती है ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को। और बायोफार्मास्यूटिक्स में हमारा जो कीन ऑब्जेक्ट होता है वो हमें ये पढ़ना है कि बायो अवेलेबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है इन तमाम फैक्टर से जो कि हमने डिस्कस की, जिसमें केमिकल नेचर ऑफ ड्रग है, यूज ऑफ इनर्ट एक्सीपिएंट्स है, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरर है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है। आगे बढ़ते हैं। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। बायो अवेलेबिलिटी बायो अवेलेबिलिटी वो अमाउंट है ड्रग की, बायोअवेलेबिलिटी refers to the fraction or percentage of an administered dose that reach the systemic circulation। वो अमाउंट ड्रग की जो जब आप कोई भी डोजेज फॉर्म लेते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, सिरप, जो भी आप लेते हैं, वो कितनी अमाउंट में आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई, अवेलेबल है, और वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनिशिएट कर सकती है। It represents the extent to which a drug is absorbed and becomes biologically active in the body, considering factors such as absorption, metabolism and elimination। इन फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है कि इसकी एब्जॉर्प्शन कितनी है, मेटाबॉलिज्म क्या है, कहाँ से कौन से ऑर्गन से मेटाबोलाइज हो रहा है, और इसकी एलिमिनेशन कहाँ से हो रही है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ dose or drug that reach the systemic circulation and responsible to initiate a pharmacological response। इस चीज को हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो ये बायोफार्मास्यूटिक्स में ही हम पढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है बायोफार्मास्यूटिक्स की, वो पीके है, जिसको आप कहते हैं acid dissociation constant of a drug or a compound। as we know that most of the drugs are weak acid or weak bases। तो पीके क्या मेजर करता है, पीके इट इज अ मेजर ऑफ द ड्रग्स टेंडेंसी टू डोनेट और रिलीज अ हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन इन अ सॉल्यूशन। कि कोई ड्रग आप ले रहे, जाहिर है वो या तो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा,
अब उसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो प्रोटॉन डोनेट करे, दूसरे लफ्जों में कि वो आयनाइज हो जाए। तो हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं द pKa वैल्यू रिप्रेजेंट्स द pH। pKa वैल्यू वो pH के बारे में बताता है at which half of the drug molecule exist in their ionized means charged form and other half exist in their non-ionized uncharged form। जब भी हम कोई ड्रग्स लेते हैं बॉडी में तो वो ड्रग आयोनाइज होती है, उसका कुछ फॉर्म आयोनाइज होता है, कुछ फॉर्म आयोनाइज नहीं होता। तो कितनी आयोनाइज्ड है, पीएच क्या है, वो पी के हमें वो पीएच बताता है जिस पर 50% आपकी ड्रग क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। आयोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि आयोनाइजेशन इन्फ्लुएंस करेगा हमारे एडीएमई को, एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को और एक्सक्रीशन को। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है। आगे चल के देखते हैं हम, स्पेसिफिकली द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द ड्रग सॉल्युबिलिटी। पहली चीज आयनाइजेशन जो इफेक्ट करती है वो सॉल्युबिलिटी, अगर ड्रग सॉल्युबल नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है या नहीं, प्रोटीन से बाइंड होगा या नहीं, या किसी बायोलॉजिकल बैरियर्स को, जितने भी बैरियर्स हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर है, अगर ड्रग्स को विद इन द सेल मूव करना है तो सेल मेम्ब्रेन को पार करना, क्रॉस करना पड़ेगा उसको। तो पीके वैल्यू सिंपल क्या है, ये वो टेंडेंसी है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी ड्रग्स कितने आयोनाइज्ड होगी, उसकी आयोनाइज्ड फॉर्म कितनी होगी और अनआयोनाइज्ड फॉर्म कितनी होगी। अच्छा जी, अब अगर पीके वैल्यू हाई है तो उसका क्या मतलब है? अ हाई पीके वैल्यू टिपिकली इंडिकेट्स दैट द ड्रग और कंपाउंड हैज अ वीकर टेंडेंसी टू डोनेट और रिलीज हाइड्रोजन आयन और सिंपली यू कैन से प्रोटॉन इन अ सॉल्यूशन। तो हाई पीके वैल्यू का मतलब है लेस आयोनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, it suggests that the drug is more likely to exist in its non-ionized, uncharged form at physiological pH values। पी के आपने कोई ड्रग दी, आप पी के वैल्यू ना मेजर करते हैं, पी के वैल्यू हाई आती है तो इसका मतलब है कि जो आपकी ड्रग है वो मैक्सिमम अनआयोनाइज्ड फॉर्म में पड़ी है। और हमें पता है कि हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि लाइक डिजोल्व लाइक, जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो लिपिड सॉल्युबल है, तो वो ड्रग जो आयनाइजेशन में चली जाती है, आयनाइज हो जाएगी, तो वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगी इतनी आसानी से बनिस्बत उन ड्रग्स के जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। तो आगे बता रहे हैं कि द नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म इज जनरली मोर लिपिड सॉल्युबल एंड कैन मोर रेडियली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। Therefore, a high pKa value is associated with better membrane permeability and potentially enhanced absorption। तो इसका मतलब है कि अगर पीके वैल्यू हाई आएगी किसी ड्रग की तो हम ये कंसिडर करेंगे, उससे ये समझेंगे कि इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, क्योंकि हाई पीके वैल्यू का मतलब है लेस आयोनाइजेशन। Therefore, a high pK value is associated with better membrane permeability and potentially enhanced absorption, particularly in environment with higher pH values like small intestine, खासकर वहां पर जहां pH की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। तो अगर हाई pH वैल्यू पर आपका pKa की वैल्यू ज्यादा आती है तो इट मींस मोस्ट ऑफ योर ड्रग इज इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म और उसकी एब्जॉर्प्शन और मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी क्या है, ज्यादा है। अब अगर लो हो पीके वैल्यू तो a low pK value suggests that the drug or compound has stronger tendency to donate or release hydrogen ion in solution. Low pK value means more ionization. More ionization means that most of your drug is in ionized form, and if the drug is in ionized form at physiological pH values, there will be less absorption and less permeability. तो सिंपली ये दो कॉन्सेप्ट हमें पीके से समझ आते हैं कि पीके की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कम आयोनाइजेशन है, कम आयोनाइजेशन है तो ज्यादा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है। और अगर आयोनाइजेशन पीके वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है कि ज्यादा आयोनाइजेशन है, और ज्यादा आयोनाइजेशन का मतलब है कि उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी। द आयोनाइज्ड फॉर्म, तो हम ये कह सकते हैं कि द आयोनाइज्ड फॉर्म इज टिपिकली मोर वाटर सॉल्युबल बट लेस एबल टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। आयोनाइज्ड फॉर्म वाटर सॉल्युबल तो होगा लेकिन वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगा। कंसिक्वेंटली अ लो पीके वैल्यू में इंडिकेट्स रिड्यूस्ड मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। वही बात हो गई कि लो पीके वैल्यू है तो इसका मतलब है कि उसकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी कम है, एंड पोटेंशियली लोअर एब्जॉर्प्शन।
particularly environment with higher pH values. फिजियोलॉजिकल पीएच अगर हाई होगी और आपकी जो pKa वैल्यू है किसी ड्रग की सॉरी वो लो आ रही है, तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ योर ड्रग इज इन आयोनाइज्ड फॉर्म, इट इज सॉल्युबल बट इट हैज हिंड्रेंस इन क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड इन नेचर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि हमें कंसिडर करना होता है जो बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है वो पार्टीशन कोएफिशिएंट है। द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफन डिनोटेड एस पी और लॉग पी से हम इसको मेजर करते हैं। और ये किसी कंपाउंड की जो है ना, ये हम मेजरमेंट ये कर रहे होते हैं कि कोई कंपाउंड जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस। टिपिकली हम जो फेजेस लेते हैं इसमें दो लिक्विड लेते हैं, ऑक्टेनॉल लेते हैं और वाटर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इस ड्रग का या जो कंपाउंड हम देखना चाह रहे हैं ये कितना परसेंट जो है कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये इसकी जो नेचर है वो लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। इट क्वांटिफाइज द टेंडेंसी ऑफ अ कंपाउंड टू प्रेफरेंशियली डिसॉल्व इन वन फेज ओवर द अदर, रिफ्लेक्टिंग इट्स लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी। तो सिंपली अगर हमें ये देखना है कि यार इस ड्रग की जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर क्या है, ये वाटर में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है या किसी दूसरे सॉल्वेंट में जो वाटर ना है, जैसे ऑक्टेनॉल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर ये हमें पैरामीटर नापना है तो हम पार्टीशन कोएफिशिएंट से इसको मेजर करते हैं। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट सिंपली मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपाउंड बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस, और टिपिकली वो फेजेस हम लेते हैं ऑक्टेनॉल एंड वाटर लेते हैं, और ये क्वांटिफाई कर रहा होता है किसी ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी को या फिर लिपोफिलिसिटी को। एफिनिटी फॉर लिपिड लाइक सब्सटेंसेस और हाइड्रोफिलिसिटी मींस एफिनिटी फॉर वाटर। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपकी बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है। आगे चलते हैं हम। एक और टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? Polymorphism refers to the phenomena where a substance or compound can exist in multiple crystal forms or structures known as polymorph, जिसमें कंपाउंड बहुत मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है या उसके मुख्तलिफ क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं। These polymorphs have different arrangements of molecules but identical chemical compositions. जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है इसमें, जो 3 डायमेंशंस में जो इसके मॉलिक्यूल स्पेस में लगे हुए होते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होने से बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, सॉलिबिलिटी है उसकी, एंड स्टेबिलिटी है। तो अगर कोई ड्रग है उसके पॉलीमॉर्फ है तो हमें यह पता करना होगा कि कौन सा जो पॉलीमॉर्फ है वो स्टेबल है, कौन सा पॉलीमॉर्फ हमें यूज करना चाहिए। तो अगर हम सिंपली रिप्रेजेंट करें या आप बताएं तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा कि भाई एक ड्रग है उसके मोर देन वन फॉर्म है विच हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन डिफरेंट पोजीशंस, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आगे चलते हैं। ये दो बेसिक डेफिनेशन हमने डिस्कस की है आज के इस शॉर्ट से वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, उसकी जो डोमेन है उसमें हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं, और फिर बायोफार्मास्यूटिक्स क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आगे बढ़े। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।